बताइए फटाफट, अभी तो आंसर दिख भी गया था इसका आपको, फटाफट से लिखो। इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। Very good. So it's called diffusion, the process by which solid substance changes into liquid. Solid substance changes into liquid is called. Yes, Utsav, I'll send that. वो वैसे मैंने आपको लाइव करानी है, पर कोई बात नहीं, I'll send you that PPT also. It is melting. ये तो common sense का question हो गया है ना. The process in which a liquid substance changes into gas rapidly on heating is called. Liquid changes into gas on heating. Boiling. What is the process called in which gas is changed into liquid by cooling? Gas is changed into liquid by cooling. It is A, condensation. Very good. The changing of a solid directly into vapors on heating and of vapors into solid on cooling is called. The changing of solid directly into vapors on heating, और उसके बाद उसको जब हम कूल करते हैं तो वो वापस सॉलिड बन जाता है, इस चीज को क्या कहते हैं? इट इज सब्लिमेशन. इसका आंसर डी है. इट इज सब्लिमेशन. दैट इज, आपने अगर सॉलिड को वेपर्स में कन्वर्ट किया हीट करने पे और उसको कूल करने पे वो वापस सॉलिड बन जाता है. A substance which cannot be split up into two or more simpler substances by the usual chemical methods of applying heat, light or electric energy is called. जो further split up नहीं हो सकता by any of the methods, उसको हम क्या कहते हैं? एटम नहीं कहते, उसको एलिमेंट कहते हैं. ठीक है, सो बी नहीं है कृष्णा, इसका आंसर है ए, एलिमेंट कहते हैं उसको. पर एटम होना चाहिए ना, बिकॉज दैट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट आई थिंक विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू. इसको देखो, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगे उसे एक दो जगह से क्रॉस चेक जरूर कर लेना. मुझे भी इसका आंसर एटम लग रहा है, बट वी कैन आस्क गूगल वंस अगेन टू कंफर्म कि इसका आंसर क्या है. तो जब भी डाउट लगे, क्योंकि जब आप ऑनलाइन रिसोर्सेस लेते हो तो कई बार ऐसा होता है कि वी आर नॉट श्योर कि जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है या नहीं. एलिमेंट ही है भाई, एटम नहीं है. हम सब लोग गलत हैं, पीडीएफ का आंसर सही है. So an element is a substance that cannot be split up into two or more simpler substances by usual chemical methods of applying heat, light or electric energy. They are pure substances composed of only one type of atom. अच्छा, so एक टाइप के एटम से ही बनते हैं, such as oxygen, hydrogen or iron, which can only be broken down by nuclear methods, not chemical methods. ठीक है, तो मेरी साइंस, आई एम अ कॉमर्स विद मैथ्स वाली स्टूडेंट, तो मुझे साइंस छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया, बट आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस. इतना तो मुझे भी समझ आ गया पढ़ के. ठीक है, सो आंसर इसका एलिमेंट है, एटम नहीं है. ठीक है, सो इसमें आंसर जो गिवन है वो सही था. आंसर इज एलिमेंट. What is an element that is malleable and ductile and conducts electricity called? What do we call that element जो कि मेलेबल है, डक्टाइल है और इलेक्ट्रिसिटी उसमें से जा सकती है? सही आंसर है इसका मेटल. सो मेटल इज एन एलिमेंट
वेरी गुड शाइस्ता। आप में से कौन कौन पीसीएम वाला है, मतलब साइंस वाले स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं जिनके पास 11th-12th में साइंस थी? इज देयर एनी? An element that is neither malleable nor ductile and does not conduct electricity is called. So जो malleable भी नहीं है, ductile भी नहीं है, electricity को भी conduct नहीं करता, उसको क्या कहते हैं? Solution, alloy, mixture या फिर colloid, colloids. Alloy कह रहे हो आप, एंड सही आंसर है सी, मिक्सचर। इसका सही आंसर है मिक्सचर। So option number C is given as the correct answer over here. A substance made up of two or more elements chemically combined in a fixed proportion by mass is called. दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके बना रहे हो विद अ फिक्स प्रोपोर्शन, तो वो क्या हो जाएगा? कंपाउंड। दैट इज सेड टू बी कंपाउंड। वेरी गुड उत्सव। So that is said to be compound. A homogeneous mixture of two or more substances is called. Homogeneous mixture of two or more substances. Answer is solution. Very good, Kirat. Good, Harman, Gauri, very nice. So it's called solution. Name the gas which is found in abundance in earth in both combined and free state with other elements. Answer दिखी गया इसका? That is oxygen. बेटा चेक कर लो, रौनक एंड उत्सव, आप नाइट्रोजन बोल रहे हो पर आंसर में ऑक्सीजन गिवन है यहाँ पे। सब लोग नाइट्रोजन लिख रहे हैं। Cross check it again. Taking your call, beta. Wait a minute. Nitrogen is the correct answer. नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। इसमें गलत है आंसर, ठीक है। सो देखो, मुझे भी जीके उतनी नहीं आती है। आई हैव ऑल्सो गॉट इट फ्रॉम सम सोर्सेस, ठीक है। तो वहां पे जो आंसर दिया है वो ऑक्सीजन है, बट दैट्स रॉन्ग। सही आंसर जो है वो नाइट्रोजन है। सो व्हेन एवर यू आर इन डाउट, ऑलवेज क्रॉस चेक द थिंग। हैंड किसने रेज किया है? अनुभव। अनुभव, कोई डाउट है और या वही पूछना था? डन, ओके। 12th क्वेश्चन है, नेम एन इनर्ट diatomic gas. Inert diatomic gas which is neither combustible nor helps in combustion. ना तो वो खुद कंबस्टिबल है, ना ही कंबशन में हेल्प करती है। नेम दैट गैस। इट इज सी, इसमें भी नाइट्रोजन है। Name a gas which is used in refrigerator and in fire extinguishers. The gas used in refrigerators and fire extinguishers. Options है nitrogen, hydrogen, carbon dioxide and methane. C is the answer. That's carbon dioxide.
only Shashank is saying methane. Beta, Shashank, it's carbon dioxide. Name a gas which is used in the manufacture of vanaspati ghee, alcohol, and ammonia. It is hydrogen. Very good, Anubhav. So it is hydrogen, जो आपके अमोनिया, अल्कोहल और वनस्पति घी में यूज होती है. Name a gas used as rocket propellant and in welding also. It is used in welding as well as rocket propellant. Neon नहीं. Cyanogen. Cyanogen. क्या बोलेंगे इसको? I'll just check बेटा क्या मतलब होता है उसका. हाइड्रोजन लिखा है इसके आंसर में तो. High efficiency propellant in rocket engines and for special welding techniques such as atomic hydrogen welding, leaving only water. So answer over here on the Google is hydrogen. That's okay बेटा. आप भी जी के सीख रहे हो यहाँ पे, मैं भी सीख रही हूँ, आती है अब में से किसी को नहीं है. So इसका आंसर सी है, हाइड्रोजन है, ये डी भी नहीं है. So D is not the correct answer. C is the correct answer. हाइड्रोजन is the answer. अब प्रोपेलेंट क्या होता है इंजन में वो आप खुद से सर्च करके मुझे बताओ. नेम अ टीयर गैस विच इज यूज्ड इन रायट्स. ये मेरे ख्याल से हम सबको पता है. जब राइट्स होते हैं तो एक गैस थ्रो करते हैं ना, वो टीयर गैस, जिससे लोगों को आंसू आने लग जाए. उसको क्या कहते हैं? CS गैस. नेम अ गैस यूज्ड इन हाई स्पीड फोटोग्राफी. हाँ, जीके में कितना भी कर लो कोई एंड ही नहीं है. सो इट्स क्रिप्टन एज पर दी PDF. क्रिप्टन. ये सारे गैस वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है. तो मैं भी ऐसे स्क्रॉल कर रही हूँ आपको दिखाते हुए. नेम अ गैस विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द एयर बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर. सो दैट इज ऑक्सीजन. तो अगर आप वाटर में करंट पास करो तो आपकी ऑक्सीजन वाटर से सेपरेट हो सकती है. नेम अ गैस विच इज यूज्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर. सो शुगर बनाने में जो गैस यूज होती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड. Name a gas which is used in making chloroform, जिससे बेहोश करते हैं. So that is methane. So chloroform बनाने के लिए methane यूज होता है. Which of the following is a large, चलो ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ गए, ये बायो से रिलेटेड आ गए. ऊपर भी आपके सारे केमिस्ट्री वाले थे. Which of the following is a large blood vessel that carries blood away from the heart? हार्ट से लेके जाती है, उसको क्या कहते हैं उस ब्लड वेसल को? Which carries blood away from the heart. Artery. Okay, let's check. Yes. Which of the following is not a member of the vitamin B complex? So vitamin B complex में thiamine होता है, riboflavin होता है, folic acid होता है, ascorbic acid नहीं होता है. So ascorbic acid is not there. ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है फंगी वाला. फंगी आर प्लांट्स दैट लैक व्हाट? फंगी और फंगी जो भी आप कहते हो, फंगी आर प्लांट्स दैट लैक व्हाट? दे लैक ऑक्सीजन, दे लैक कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल. क्या लैक करते हैं वो?
They lack chlorophyll. Yes, C is the correct answer. They lack chlorophyll. What makes a reptile a reptile? Cold-blooded, warm-blooded, non-hearing, egg-laying. Why the reptiles are called reptiles? Because they lay eggs. अच्छा? You think it's the correct answer? Eggs तो sparrows भी lay करती हैं, पर उनको हम reptiles थोड़ी बोलते हैं. कोल्ड ब्लडेड देगा, वही मैं सोच रही थी, ऐसा तो आंसर नहीं हो सकता. Reptiles are air breathing, cold blooded, covered in dry scales or this. So इसका आंसर है cold blooded. Yes, cold blooded is the correct answer. इसका आंसर A है सही आंसर, cold blooded. Which blood vessel have the smallest diameter? ब्लड वेसल्स जो होती है उसमें से सबसे कम डायमीटर वाली कैपिलरीज होती है. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट. वेरी गुड उत्सव. Which of the following is an airborne disease? Measles, typhoid, pink eye. ए मीजल्स होता है ना एयरबॉर्न. अगर जैसे किसी को मीजल्स है और आप उसके रूम में भी चले जाते हो तो भी चांसेस होते हैं दैट यू कैन गेट इट. पिंक आई देखने से होता है. अगर आप किसी की आई में देखते हो जनरली देन इट हैपेंस. सो एयरबॉर्न आपका मीजल्स है. A yellow dust appears on the fingers whenever we touch the middle of a flower. These tiny yellow grains are one of the most precious substances in nature because they contain the secret of plant life. What is the dust called? हिंदी में वो कहते हैं ना माता निकली है जो, दैट इज मीजल्स. चिकन पॉक्स भी कहते हैं. दैट्स कॉल्ड पोलन. सही जवाब. Which organ of the body produces the fluid known as bile? आंसर तो दिख ही गया खैर इसका आपको. And it says it is liver. It produces a fluid known as bile. Which of the following hormones is a steroid? बेटा हैंड रेस किसने किया था? अनुभव. यस अनुभव. हेलो हेलो. यस अनुभव. So it is A, estrogen. Which one of the following is not a function of the liver? Regulation of blood sugar, enzyme activation, detoxification, reproduction. बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो कोई भी बता देगा. इंसुलिन नहीं होता स्टीरॉयड. फिर भी एक बार चेक कर लो रौनक. Just check once on Google and let me know. So reproduction is not a job of liver. Which of the following is or are the main functions of lymphocytes? Produce antibodies, produce antigens, produce white blood cells. Options are only one, both 2 and 3, both 1 and 3, 1, 2 and 3, all. So it is only one, that is it produce antibodies. 31st का आंसर है produce antibodies. Option number 1. Consider the following statements. Insulin is a fat storage hormone that is released by the pancreas and regulates metabolic process. Melatonin is produced by the
pineal gland in the brain which controls sleep and wake cycles. Choose the correct statements in this. सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट सही है, या दोनों सही है, या दोनों में से कोई भी सही नहीं है. One and two. So both are correct. Which year man first landed on the moon? चलो आंसर दिखिए अब. So man landed on the moon in 1969. Is it correct? Very good, Shashank. In space, the sky looks to an astronaut blue, red, white या फिर black. स्पेस में एस्ट्रोनॉट को स्काई कैसा दिखता है? ब्लू, रेड, व्हाइट या फिर ब्लैक? ब्लैक. वेरी गुड. Which of the following is also known by the name of red planet? इसमें से किस को हम रेड प्लैनेट के नेम से भी जानते हैं? Mars. Yes, very good. The earth revolves around the sun in 360 days, 365 days, 365.25 days या फिर 24 hours. 365.25 डेज. इसीलिए हर 4 साल बाद हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा होता है. Paris based Minor Planet Center of International Astronomical Union has given a new name to the planet Pluto, and it is Pluto को जो नया नाम दिया है वो क्या है? It is 134340. ये क्या नाम हुआ, बट जो भी है. बेटा प्लीज अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ बोलना है तो हैंड रेस करो, अदरवाइज आपका हैंड रेस सिर्फ क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है. Am I audible? The new name of the celestial body Xena 2003 UB313 given by IAU is. मुझे नहीं पता ये क्या होता है, मे बी कोई सैटेलाइट है, तो उसको नया नाम क्या दिया गया है? सो इट इज साइरिस आइरिस ग्रैब्रिली डायसोनोमिया. तो उसको नया नाम दिया गया है आइरिस, IRIS. Which of the statement is correct about the planet Saturn? Cooler than Pluto, cooler than Neptune, hotter than Neptune और hotter than Jupiter. इसमें से कौन सी statement correct है about the planet Saturn? So Saturn के लिए इसमें से कौन सी statement correct है? याद तो बेटा आपको ही करने पड़ेंगे. अब कितने याद करोगे वो भी डिपेंड करता है, और पेपर में उसमें से कितना याद रहेगा. It's all luck. So answer is hotter than Neptune. So Saturn is hotter than Neptune. हाँ रोज करो, कुछ तो याद रहेगा ही. मैं तो कराऊंगी क्लास में, जैसे आज हमने 50 कर लिए, उनको याद करना है. तो दोपहर को पढ़ो, जब जागो तभी सवेरा. Who provided the first information regarding the black hole? So ब्लैक होल के बारे में सबसे पहली इंफॉर्मेशन किसने दी थी? देखा, हमारे देश एस चंद्रशेखर जी ने. So the first information given by black hole was by S. Chandrasekhar. चेक कर लो कृष्णा एक बार, कंफर्म करूं? What is the distance of the earth from the sun? ये तो स्कूल में छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा.
What is the distance of the earth from the sun? D 149.6 million किलोमीटर. पास में ही है ना. 149.6 मिलियन किलोमीटर. सब लोग 146 कह रहे हो आप लोग. वन 149.6 है बेटा. It's 149.6. Option D is the correct answer. Yes, Anubhav. Option D is the correct answer. Which one of the following is also called blue planet or green planet? इसमें से किसे हम ब्लू या ग्रीन प्लैनेट कहते हैं? मार्स, अर्थ, वीनस या फिर सैटर्न? सो इट इज बी, दैट इज अर्थ. क्योंकि ब्लू और ग्रीन यही है. पेड़ पौधे भी हमारे पास ही है, पानी भी हमारे पास ही है. हु इन्वेंटेड ट्रांसफॉर्मर्स? Who invented transformers? It is Faraday. Faraday invented transformers. Which of the following is the outstanding contribution of scientist Enrico Fermi in physics? Enrico Fermi ने क्या बनाया था फिजिक्स में? Which law? Nuclear furnace और bath, law of motion, discovery of calculus या फिर parasite? Answer is A. न्यूक्लियर. देखो उनके नाम से ही थोड़ा सा मैचिंग है. एनरिको फर्मी है वैसे तो, बट दिस इज फर्नेस ऑफ न्यूक्लियर फर्नेस या फिर बाथ. Which of the following is one of the contribution of scientist एडवर्ड चार्लीज? एडवर्ड चार्लीज ने बनाया था फोटोमीटर. सो एडवर्ड चार्लीज contributed a photometer. Which of the following is the prominent contribution of scientist Shackley? Shackley. साइंटिस्ट शैकले ने क्या बनाया था? न्यूक्लियर फ्यूजन, डायलिसिस मशीन या फिर ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर तो नहीं बनाया था, वो तो हमने देख लिया ऊपर. बचे दो, न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर डायलिसिस मशीन. सो आंसर है ट्रांजिस्टर. तो अभी नहीं था क्वेश्चन किसने बनाया था. अच्छा वो ट्रांसफॉर्मर था, सॉरी, दैट वाज ट्रांसफॉर्मर. ये ट्रांजिस्टर है. सो ट्रांजिस्टर बनाया था शैकले ने. पास्कल. पास्कल का तो सबको पता है ना. पास्कल ने क्या बनाया था? फोटो, वोल्टा, कंप्यूटर या कैलकुलेटर? इसका आंसर तो सबको आना चाहिए. ब्लेसी पास्कल थे ना हमारे पास. कैलकुलेटर. उसी के बेसिस पे आगे जाकर कंप्यूटर बनाया गया था. Which of the following is the major contribution of scientist Swinton? Swinton ने क्या बनाया था? Military tank. So Swinton created a military tank. And contribution of Jens, Jeans, Jens ने क्या बनाया था? So he made option A, that is lens, camera lens. Camera lens. Last question in this PDF is, which of the following is the striking contribution in physics of scientist Fahrenheit? क्लिनिकल थर्मोमीटर. तो इसीलिए जो भी हमारा बॉडी का टेम्परेचर आता है वो फ़ारेनहाइट में ही आता है ना, है ना. जो हम कहते हैं 98 डिग्री हमारा, मेरे को 100 बुखार है, तो 100 डिग्री सेल्सियस थोड़ी होता है. दैट इज इन फ़ारेनहाइट. सो दैट इज इट. ये पीडीएफ में आपको भेज दूंगी. इसमें 3 क्वेश्चंस के आंसर्स गलत थे तो वो आप मार्क कर लेना, ठीक है. बाकी आंसर्स इसमें सही थे. सो यू कैन जस्ट लर्न इट, गो थ्रू इट, ताकि आप इसको याद कर सको. ऐसे ही हम रोज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे.
टुमारो वी विल बी डूइंग इंग्लिश क्वेश्चंस ओनली. जैसे आज हमने सिर्फ जीके के किए, कल हम सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे. और इस फ्राइडे को वी विल बी हैविंग अ कंप्यूटर अवेयरनेस मैराथन. मैराथन मतलब 100 से ऊपर क्वेश्चंस करेंगे. हाँ भाई, भेज रही हूँ उत्सव, वो पीडीएफ में आपको भेज रही हूँ अभी. उसमें वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट आई विल बी डूइंग एनी 100 आउट ऑफ दैट. ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. इट विल बी अ लॉन्गर क्लास ऑन फ्राइडे, मे बी 2 घंटे की कर सकते हैं. एंड वी विल बी डूइंग जितने हमारे पास कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन 2 घंटे में हो पाएंगे.